Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. Welcome to our series of NCERT, where we are trying to simplify the concept of NCERT. Right now, we already have done class 11 NCERT, all the chapters we have done. You can find the link of the playlist in our description section. You can watch all the videos over there. You can simplify the concept of psychology. Right now, what we are doing, we are simplifying the concept of class number 12 NCERT. And under class number 12, we are right now doing the chapter number 1, that is variation of psychological attributes. And under variation of psychological attributes, this is the fourth part where we will try to distinguish between Western and Indian self of intelligence, Western and Indian concept of intelligence. Okay, so in this particular chapter, what we are focusing upon the concept of intelligence. So from the starting, we talk about that how intelligence varies, what are different theories of intelligence, what are different tests of intelligence, and now moving forward, we will try to distinguish between Western concept of intelligence and Indian concept of intelligence. There is a big difference between both of them. So we will try to elaborate what is that particular difference. Before moving forward, I just want to make a small announcement that the foundation batch for psychology optional is going to start from 7th of June. This will be one-stop solution for all psychology related issues. We will be covering all the topics from basic to advanced into this particular course, along with answer writing, regular answer writing, along with doubt solving mentorship sessions. Complete notes will be given. Test series will also be there. Sectional, full length test, everything will be there. Concise and organized handouts will also be there. Current affairs magazine, personal mentorship, and all these things will be valid for 2 years. For more details, you can visit our website, or you can also connect on WhatsApp or call on these particular number. So you can join this course if you think that you want to do good with this particular option. Now moving forward towards our topic, we are talking about that how the concept of intelligence differs in India or in US. So now you know that India और US में अगर हम बात करें इंडिया और US, वेस्टर्न और इंडिया में अलग अलग कल्चर है. In India, the culture is what? Collectivistic culture. In US, the culture is individualistic culture. So definitely culture impact everything. कल्चर की वजह से हर एक चीज इंपैक्ट होती है. अब इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया में आत्मन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन यूएस में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता. वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर पर्सनल चॉइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वहां पर बच्चों को क्या करना है, तो इनके लिए उनके पास फ्रीडम है. दे विल डिसाइड देमसेल्व्स कि उनको क्या करना है, कहां पे आगे जाना है. बट इंडिया में ये डिसीजन लेती है फैमिली, सोसाइटी, आपके बड़े भाई बड़े बहन, आपके फैमिली मेंबर्स विल डिसाइड. सो एवरीथिंग इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट. सो डेफिनेटली इस कल्चर की वजह से आपका जो इंटेलिजेंस होगा वो भी शेप करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हम कहेंगे कि एक बच्चा वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है जो फैमिली वैल्यूज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हो, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करता हो, जिसने कम्युनिटी के अंदर हमेशा सोशल हार्मनी को मेंटेन करके रखा है, वो उसको भी हम कहेंगे इंटेलिजेंट. लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर की बात कहेंगे तो वहां पर उस बच्चे को कहा जाएगा इंटेलिजेंट जिसका आईक्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म आता है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, जिसको पता है डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, जिसको पता है रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, अचीवमेंट, एक्सीलेंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी. तो वहां पर ये वाले क्राइटेरिया होते हैं. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पे क्या क्या होते हैं, फैमिली, एल्डर्स, इनकी रिस्पेक्ट करना, आपकी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर कितना कॉपरेशन है, सेंस ऑफ कॉपरेशन. इंडिया के अंदर रिलेशनल कंसेप्ट होता है. वी आर रिलेटेड टू अवर सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ अस. ओके, सो हाउ वेल वी कैन ब्रिंग सोशल हार्मनी अमंग्स्ट अवर पीपल, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हमारा कल्चर अलग है, इस वजह से लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी आप देखोगे आपको अलग देखने को मिलेगा. तो इंडिया के अंदर आप देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज्यादा बातें की जाएंगी, इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ज्यादा बातें की जाएंगी, है ना. मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर अलग से नॉलेज है तो उसको भी हम कहेंगे इंटेलिजेंट. ठीक है, अगर कोई इंसान है रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा आगे है तो उसको भी अपन कहेंगे इंटेलिजेंट, क्योंकि ये हमारी कल्चर वैल्यूज होती हैं. तो इस हिसाब से कल्चर की वजह से भी आपका कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वेरी करता है. मूविंग फॉरवर्ड आप देखिए, इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर होते हैं, उनका नाम होता है विगोटिस्काय. विगोटिस्काय इज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. ये कहते हैं, ये बहुत बातें करते हैं कल्चर के बारे में. तो पहले के टाइम पे क्या था, कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी.
लेकिन अब क्या होता है, कल्चर को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसी में ही विगोटिस्का हमें कहते हैं कि कल्चर बिल्ड हायर मेंटल फंक्शनिंग। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल फंक्शनिंग को सही तरीके से डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कोई बच्चा है, एक कोई किड है, उसकी उम्र कितनी है, 6 या 7 साल। ओके, अब ये 6 से 7 साल का जो बच्चा होगा, ये कितना ग्रो करेगा अपनी लाइफ में, ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि उसके माँ बाप, पेरेंट्स, फैमिली सपोर्ट कितना है, उसके टीचर्स, उसके पीयर्स, उसकी लैंग्वेज, वो किस तरीके की किताबें और कहानियां पढ़ता है। तो ये सब चीजों को डेवलप करने के लिए, उस बच्चे को अपने आप को डेवलप करने के लिए सोसाइटी का और कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमें विगोटिस्का बताते हैं। तो मतलब कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, हर एक बच्चे के अंदर ये एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, ये आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, है ना। वॉकिंग, रनिंग, क्राइंग, अटेंशन। वॉकिंग, रनिंग तो आप देखिए एक तरीके से हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, बच्चा मैच्योर होगा तो वो सीखता जाएगा। लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये जो हायर मेंटल फंक्शनिंग होती है, जैसे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थिंकिंग, प्लानिंग, सेल्फ रेगुलेशन, लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमारी कल्चर में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हायर मेंटल फंक्शन आर नॉट इनबॉर्न, दे अराइज फर्स्ट इन सोशल इंटरेक्शन एंड देन विद द इंडिविजुअल, ऐसा कहना होता है विगोटिस्का का। आप देखोगे विगोटिस्का कहते हैं कि सोसाइटी में बच्चा सोसाइटल लेवल से बच्चा इंटरेक्ट कर करके लोगों से सीखेगा और उसके बाद उस लर्निंग को अपने अंदर इनहेरेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को, किसी को, जैसे मान लीजिए आपको कार चलाना आता है, ये आपने सीख लिया अपने आप से। लेकिन अगर कोई हायर मेंटल फंक्शन है, जैसे आपको कार पार्क करना नहीं आता, तो कार पार्क करने के लिए आपको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी, वो आपको सिखाएगा। वो आपको सिखाएगा, आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया, उसने आपको सिखाया, फिर आपने उस लर्निंग को अपने ही अंदर क्या किया, इंटरनलाइज किया, समझा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन, और फिर आपने उसको अपने अंदर इंडिविजुअल समझा। तो इस तरीके से विगोटिस्का कहते हैं कि कल्चर हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। कल्चर की वजह से सबसे पहले हम सोसाइटी से चीजों को सीखेंगे, इंट्रा लेवल पर और फिर इंटर लेवल पर। तो इंट्रा साइकिक और इंटर साइकिक, इस तरीके से हमारी लर्निंग होती है। सोसाइटी हमें काफी कुछ समझाने की कोशिश करती है, ऐसा हमें विगोटिस्का कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेकिन आप देखोगे वेस्ट के अंदर अलग कंसेप्ट है। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका फोकस ज्यादा होता है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की ज्यादा बातें की जाती है, यानी कि एकेडमिक इंटेलिजेंस। तो वहां पर हम बात करते हैं किसकी, आईक्यू टेस्ट के बारे में। तो वहां पर फोकस आईक्यू पर ज्यादा होता है। ठीक है, कि स्पीड कितनी है, एनालिसिस कितना आप कर सकते हो, अचीवमेंट, आपका परफॉर्मेंस, आपका एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, कंसेप्ट को समझना और रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है ना, तो दिस इज द एबिलिटी, योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, think logically and work with technology. This is more important in the context of academic intelligence, in the context of western view of intelligence. लेकिन जो हमारा नॉन वेस्टर्न व्यू होता है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। नॉन वेस्टर्न व्यू यानी कि ऐसा व्यू जो हम, जहां पर हम इंडिया की बातें नहीं कर रहे, जहां पर हम सॉरी यूएस की बातें नहीं कर रहे, हम इंडियन की बात कर रहे हैं। तो नॉन वेस्टर्न व्यू क्या होता है, वो बोलता है कि इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी बट अ रिलेशनल एंड कंटेक्चुअल कैपेसिटी। जैसे इंडिया के हिसाब में, कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। ट्राइबल बच्चों का इंटेलिजेंस अलग होता है। ऐसा कोई बच्चा जो गांव, रूरल एरिया में रहता है, उनका इंटेलिजेंस अलग होता है। शहरों में रहेगा तो इंटेलिजेंस अलग होगा। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से ये कैपेसिटी होती है। इट इज नॉट जस्ट इंडिविजुअल एबिलिटी। किसी में आपको सोशल हार्मनी को लेकर ज्यादा इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। दे आर गुड इन मेंटेनिंग बैलेंस, पीस एंड बिलोंगिंग विद इन द ग्रुप। किसी में आपको इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। किसी में आपको कलेक्टिव वेलफेयर, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी सारे जो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस होते हैं, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, वहां पर इंटेलिजेंस एक हॉलिस्टिक कंसेप्ट है। इट इज रूटेड इन रिलेशनशिप, वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इट इज आल्सो द एबिलिटी टू रिलेट वाइजली अमंग द पीपल और विद द अदर्स। और ऐसे ही इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए हम क्या कहते हैं इसको, बुद्धि। Okay, it is an Indian view of intelligence. बुद्धि इंटीग्रेट कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, मोरालिटी। इंडिया का जो इंटेलिजेंस है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके पास ज्ञान होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, इसका मतलब होता है विवेक। तो आपके अंदर विवेक डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, अपने आप को पहचानना। सेल्फ नॉलेज, ठीक है। विल, आपके अंदर की विल क्या है, कंसाइंस कितना अच्छा है आपका, ठीक है, कि आपके अंदर की आवाज की क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो हमारा जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि,
वो इन सब की बातें करता है। वो बात करता है नॉलेज की, डिस्क्रिमिनेशन की, कंसाइंस की, विल की, अंडरस्टैंडिंग की। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड इंटेलिजेंस। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आईक्यू से कैसे अलग होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे ही देखोगे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस बताते हैं। एक तो आपके अंदर की कॉग्निटिव कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है, कितना आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो, कितना आप कंसर्न दिखाते हो लोगों के प्रति, एम्पैथी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, पर्सपेक्टिव टेकिंग, इमोशनल कॉम्पिटेंस कितना अच्छा है आपका, ठीक है ना, पोलाइटनेस, कंडक्ट, ऑनेस्टी, एंड देन लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इज इंटेलिजेंस कल्चर फ्री, इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट अपॉन कल्चर, इंटेलिजेंस is universal in potential but definitely it is culturally shaped in expression and evaluation। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन क्या कहती है कि इंटेलिजेंस यूनिवर्सल है, इंटेलिजेंस सब जगह एक ही है। किस कंटेक्स्ट में? पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में। हर एक इंसान के अंदर इनफ पोटेंशियल होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में, एक्सप्रेशन और इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में ये आपको वेरी मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक आईक्यू टेस्ट बना दिया तो उस आईक्यू टेस्ट को आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से आईक्यू टेस्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ही कौन कहते थे? ऐसा ही कहते थे हमारे विगोटिस्काय, स्टर्नबर्ग, और ऐसा ही कुछ बताता है हमारा इंडियन कंसेप्ट ऑफ बुद्धि। ठीक है, तो इस तरीके की इंटेलिजेंस हमें भी आवश्यक है। यूपीएससी में आप देखिए व्हाई यूपीएससी नीड्स इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आईक्यू, ये सिर्फ आईक्यू का काम नहीं है ना, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग, अपने रिलेशनशिप भी संभाल के चलने हैं, एम्पैथी, जीएस4 पेपर होता है ना एथिक्स का, गोल के लिए अपने आप को परसिस्टेंस रखना है। तो हमारे लिए तो बुद्धि, जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आया होगा बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे ही और टॉपिक को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारा ये फाउंडेशन बैच जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यही टॉपिक्स हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th of June। यहाँ पर हमने एक एनसीईआरटी का सिंपल व्यू लिया है, इनको विद द हेल्प ऑफ थ्योरी विद अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, यही लेक्चर 2 से 3 घंटे में होता है वहां पर। तो आप ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है साइकोलॉजी की, इसको और बेटर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।